Hello, dear friends. Welcome back. I'm Sharda Lande. Students, in our previous lecture, you study poem number 28, Elf Singing. Now, today we are going to continue the next lesson. Lesson number 29, Androcles and the Lion. Androcles and the Lion. And it means that Androcles and Sher. So now let's start the lesson. First, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles, but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their master. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however weak he might be. Androcles did not like his weak master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutch of his cruel master. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with the lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it took at him piteously, as if it was in a great pain. Androcles paused. Then he moved very continuously toward the lion step by step. The lion moaned and whimpered, "Please help me," its eyes seemed to say. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion distress, thought Androcles. So students, let explain you. Long ago, there lived a kind, gentle, courteous man called Androcles. एक टाइम की बात है स्टूडेंट्स, एक जगह थी जहाँ पे काइंड मतलब बहुत ही अच्छा, जेंटल, courteous मैन कॉल्ड एंड्रोक्लिस, मतलब एक जगह थी जहाँ पे एंड्रोक्लिस नाम का एक बहुत ही जो दयालु था, बहुत ही जेंटल था, मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जो वो जहाँ पे रहता था. बट ही हैड अ क्रूएल मास्टर. बट वो जहाँ पे रहता था वहाँ पर उसका जो मास्टर था, मतलब उसका जो मालिक था, वो बहुत ही क्रूएल था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था. इन दोज डेज kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. एंड्रोक्लिस जहाँ पे रहता था स्टूडेंट्स, और वो जो टाइम था उस टाइम में वहाँ पे रहने वाले जो भी किंग्स, मतलब जो भी राजा महाराजा थे, जो भी नोबल पर्सन थे, जो भी अमीर लोग थे, वो जो पुअर पीपल थे, मतलब जो गरीब लोग थे, उन्हें उनके यहाँ पे उनका नौकर बना के रखते थे. और एंड्रोक्लिस वॉज अ स्लेव, और एंड्रोक्लिस जो था वो भी एक स्लेव ही था, मतलब एक नौकर था. द स्लेव वेयर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर.
जो नौकर जो होते थे स्टूडेंट्स, उनको उनके मास्टर के लिए मतलब उनके उस मालिक के लिए काम करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। दे हैड टू डू वॉट द मास्टर टोल्ड देम। जो नौकर थे उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता था जो उनका मालिक उन्हें कहता था। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स। उन्हें किसी तरह का कोई उन्हें किसी भी तरह की कोई फ्रीडम नहीं थी और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं थे। इवन वेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम। यहाँ तक कि अगर वो उनके उस मालिक के साथ खुश नहीं है, उनका काम करने के लिए वो मालिक उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी उन्हें उसके साथ काम करना ही पड़ता था। वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। जैसे हमारा देश जब गुलाम हुआ करता था स्टूडेंट्स, तो उस टाइम जो अंग्रेज़ लोग जो थे उनकी गुलामी करते समय जो जो गरीब लोग थे उनके साथ भी वैसे ही बिहेव किया जाता था। मतलब जो गरीब लोग थे उनके साथ वैसे ही उन्हें वैसे ही ट्रीटमेंट दी जाती थी जैसे अभी हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। दे वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर हाउ एवर वीक ही माइट बी। वो उनके मास्टर के साथ मतलब उनके उस मालिक के साथ एक लॉ के अनुसार मतलब एक कायदे के अनुसार बंधे हुए होते थे। हाउ एवर वीक ही माइट बी, वो कितने उसमें और वो उस लॉ के हिसाब से उनके उस मालिक से बंधे हुए होने के कारण वो खुद को बहुत ही ज़्यादा वीक समझते थे। एंड्रोक्लिस डिड नॉट लाइक हिज वीक मास्टर। और जो एंड्रोक्लिस था उसको उसका जो वीक मास्टर था मतलब उसका जो मास्टर था जो उसका मालिक था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिज मास्टर स्टार हिज स्लेव्स एंड ऑफन whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. मतलब एंड्रोक्लिस का जो मालिक था वो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता था। वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही बैडली उन्हें ट्रीट करता था, एंड्रोक्लिस को ट्रीट करता था। और जो एंड्रोक्लिस था स्टूडेंट्स, उसे ये उसके उस मास्टर के लिए मतलब उसके उस मालिक के लिए काम करने से अच्छा मर जाना पसंद था। एंड्रोक्लिस फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर दैन सर्विंग सच अ मास्टर। वो सोच रहा था कि इस मालिक के लिए काम करने से तो अच्छा मर जाना ठीक है। ही केप लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। और इसीलिए एंड्रोक्लिस जो था वो वहाँ से चले जाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था। मतलब वो रास्ता ढूंढ रहा था कि उसे कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब कोई वजह मिले और वो वहाँ से भाग जाए। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही एस्केप फ्रॉम द क्लच ऑफ हिज क्रूएल मास्टर। और फिर एंड्रोक्लिस को एक चांस मिल गया और फिर वो वहाँ से भाग गया उसके क्रूएल मास्टर को छोड़कर, उसके उस डेंजरस मालिक को छोड़कर वो वहाँ से भाग गया। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लिस हैड डज रन अवे ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड। अब एंड्रोक्लिस जो था वो जो भाग गया था वो कावर्ड नहीं था, मतलब वो कायर नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। वो कायर नहीं था और उसकी वजह से वो भाग के एक जंगल में चला गया और वहीं पर उसके लिए वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम इन द फॉरेस्ट। एंड्रोक्लिस जो था उसे वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगल में रहने वाले जो जंगली एनिमल्स थे उनसे बिल्कुल भी उसे डर नहीं लगता था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ऑफ हिज हेड। उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके रहने के लिए वहाँ पे कोई जगह है भी या नहीं। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेयर एवर ही विश्ड। लेकिन फिर भी वो खुश था, उसके रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि अभी वो फ्री था, वो आज़ाद था और वो एक बर्ड की तरह, एक पक्षी की तरह वो कहीं पे भी जा सकता था जहाँ पे उसकी इच्छा हो। वन डे एज ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लॉयन। और एक दिन जब एंड्रोक्लिस जो था वो जो जंगल में घूम रहा था और एक बार सडनली मतलब अचानक से वो लॉयन के सामने आके खड़ा हो गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली। एंड्रोक्लिस का जो फर्स्ट रिएक्शन था उसने सोचा कि ये वाइल्ड एनिमल है, लॉयन है और इसका सामना करना शायद सही ना हो, इसीलिए यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा।
बट देन ही सॉ दैट द लॉयन हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम। पर उसने क्या देखा, उसने देखा कि लॉयन ने उसको देखा, फिर भी वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। इट नाइदर ग्रॉल्ड नॉर रोअर्ड, और ना ही उसने उस पर जंप की, ना ही उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, और ना ही लॉयन ने उसके ऊपर रोअर किया। रोअर मतलब जो लॉयन की जो साउंड है, इन मराठी वी कॉल्ड इट सिंहाची डरका सिंहाची जी गर्जना, ती तो जी डरकाळी तो जी डरकाळी जंगलामध्ये सोडत असो, ती डरकाळी मतलब रोअर, उसका जो आवाज़ है उसने वो भी नहीं निकाला। इनफैक्ट इट लुक एट हिम पिटियसली एज इट वॉज इन अ ग्रेट पेन। एंड्रोक्लीज ने लॉयन को जब खड़े देखा तो वो वहाँ पे खड़े रह के उसने देखा कि ये जो लॉयन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे से दर्द में है, मतलब उसको कहीं पे चोट लगी है और उसको दर्द हो रहा है। एंड्रोक्लीज पॉज्ड, वो वहाँ पे रुक गया। देन ही मूव वेरी क्यूटियसली टूवर्ड्स द लॉयन स्टेप बाय स्टेप। फिर वो धीरे धीरे से लॉयन के पास जाने लगा। द लॉयन मोन एंड विम्पर्ड, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से। जो लॉयन जो था उसकी आंखों से वो एंड्रोक्लिस को बताने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ हेल्प मी, तुम मुझे मेरी मदद करो। अब डेफिनेटली लॉयन जो था वो जंगली एनिमल था और एनिमल बात नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों से एंड्रोक्लिस को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं दर्द में हूँ, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। व्हेन एंड्रोक्लिस ड्रू नियर, द लॉयन लोअर्ड इट हेड एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ। अब जब एंड्रोक्लिस जो था वो जब लॉयन के एकदम से पास चला गया तो जो लॉयन था उसने क्या किया, उसने अपने हाथ से कोई रिएक्शन की, मतलब कोई एक्शन किया और उस एक्शन की वजह से उसने एंड्रोक्लिस को खुद के पास रोकने की कोशिश की। देन एंड्रोक्लिस सॉ दैट द लॉयन्स पॉ वॉज वाउंडेड सोर एंड सोलन। फिर एंड्रोक्लिस ने देखा कि जो लॉयन था उसका जो पॉ था, मतलब उसके जो हाथों का जो पंजा था उसमें चोट लगी हुई है। ऑन अ क्लोजर लुक एंड्रोक्लिस नोटिस दैट अ बिग थ्रॉन हैड pierced वन ऑफ द लॉयंस टोज। उसने जब एंड्रोक्लिस ने जब देखा, बहुत ही पास से देखा, तो उसने देखा कि जो लॉयन की जो टोज है उसमें भी चोट लगी हुई है। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लॉयंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लिस। और उस टाइम एंड्रोक्लिस ने सोचा कि इसी वजह से ये जो लॉयन है ये थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, थोड़ा सा दुखी दिख रहा है, दर्द में दिख रहा है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। हियर यू सी दिस स्टूडेंट्स, यू सी दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो लॉयन है कैसे उसके हाथों में चोट लगी हुई है और कैसे वो जो एंड्रोक्लिस है वो उसके हाथों में अभी मरहम पट्टी करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम ये आगे पढ़ेंगे। Some morning up all his courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. Some morning up all his courage, मतलब जो एंड्रोक्लिस जो था स्टूडेंट्स, वो बहुत ही हिम्मत से वो लॉयन के पास जाके बैठ गया। एंड्रोक्लिस स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। एंड्रोक्लिस ने फिर क्या किया, उसने बहुत ही धीरे से अपने हाथ को लॉयन के जहाँ पे चोट लगी हुई थी उस चोट लगी हुई हाथ के पास लेके गया। ही वॉज अफ्रेड दैट द लॉयन वुड अटैक हिम इफ़ ही टच इट्स सोलन पॉ। जो एंड्रोक्लिस जो था वो डर गया था, उसे लग रहा था कि मैं ये इसके हाथों को पकड़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर ये कहीं मुझ पे ही अटैक ना कर दे, क्योंकि लॉयन के हाथों में चोट लगी हुई थी। बट द लॉयन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। बट जो लॉयन था वो भले ही बोल नहीं सकता था स्टूडेंट्स, पर उसने फिर भी एंड्रोक्लिस की गुड इंटेंशन मतलब उसके अच्छे इरादों को समझा था। Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn, then tearing a piece of his own clothing,
द काइंड मैन bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो एंड्रोक्लिस जो था उसने क्या किया, उसने लॉयन का जो हाथ था मतलब उसको अपने लेफ्ट हैंड में उसने पकड़ लिया. ही पुल्ड आउट द थ्रॉन, और फिर उसने लॉयन के हाथों में जहाँ पे चोट लगी हुई थी वहाँ पे जो भी कुछ कांटे या कुछ पत्थर या कुछ होगा जहाँ से खून बह रहा होगा वहाँ से वो जगह साफ की. देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथ, फिर एंड्रोक्लिस ने क्या किया, उसने अपने खुद के कपड़े को फाड़ा, मतलब उसने उसके खुद के कपड़ों से उसके खुद के कपड़ों को फाड़ के कपड़े का एक टुकड़ा उसने अपने कपड़ों से निकाला. द काइंड मैन बाउंडेड अप द लॉयंस इंजर्ड पॉ, और फिर उसने लॉयन को जहाँ पे चोट लगी हुई थी वहाँ पे वो कपड़ा उसने वो बांध दिया. टू सरप्राइज एंड वंडर द लॉयन देन लिक्ड हिज आर्म, फिर जो लॉयन था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया. उसने ये सब देखा कि कैसे एक एंड्रोक्लिस जो एक ह्यूमन है, जो एक मनुष्य है, और फिर भी उसने एक लॉयन की जो जंगली एनिमल है जो लोगों को खाने की कोशिश करता है जंगल में, उसकी मदद करने के लिए उसने खुद के कपड़े फाड़ के उसके हाथों में पट्टी बांधी एज इफ इट शोज ग्रेटिट्यूड. और फिर उसने एंड्रोक्लिस को ग्रेटिट्यूड मतलब उसको धन्यवाद करने की कोशिश की. अब जैसे हम ह्यूमन से स्टूडेंट्स मनुष्य कैसे बोल के एक दूसरे को थैंक यू बोल सकते, लेकिन जो लॉयन था उसने उसके हाथों को एंड्रोक्लिस के हाथों में दे के और फिर उसको धन्यवाद दिया. एंड्रोक्लिस remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast every day. He would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. फिर क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो एंड्रोक्लिस जो था, अब एंड्रोक्लिस ने एक ज़ख्मी शेर की हेल्प की थी. मतलब जो लॉयन जो था जो इंजर्ड लॉयन था उसकी जो चोट लगी हुई थी उसकी हेल्प करने के बाद एंड्रोक्लिस ने देखा कि जो लॉयन है अभी वो आगे चल नहीं सकता, तो उस वजह से जो एंड्रोक्लिस था वो वहीं पे रहा और जंगल में रह के जो एंड्रोक्लिस जो था, जो उसके लिए खुद के लिए जो शिकार किया करता था खाने के लिए, जो भी वो कुछ भी खा सकता था, तो वो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना लॉयन के साथ शेयर करता था. ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस वाउंड, और फिर वहीं पे रुक के उसने कुछ दिनों तक उस लॉयन की देखभाल की. उसने डेली वो लॉयंस की चोट को साफ करता था और वहाँ पे पट्टी बांधता था. सून द लॉयन वॉज एबल टू मूव अबाउट, और फिर जल्दी से ही जो लॉयन था वो ठीक होने लगा. मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लिस वेर एवर ही वेंट. बहुत बार वो जो लॉयन था, जो शेर था, वो एंड्रोक्लिस का पीछा करता था जहाँ पे एंड्रोक्लिस जाया करता था. इन द मीन वाइल एंड्रोक्लिस मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटी that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions. Androcles' master had complained to authority that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low, but could not find him. At last they came to the forest where Androcles lived. At the last क्या हो गया स्टूडेंट्स, लास्ट में एंड्रोक्लिस का जो मास्टर था, मतलब उसका जो मालिक था, उसने जो अथॉरिटी थी वहाँ की, मतलब जो सरकार थी, उनसे कंप्लेन की दैट हिज स्लेव एंड्रोक्लिस हैड रन अवे. उसने उन्हें बताया कि मेरा जो नौकर है वो भाग गया है. सोल्जर वेयर सेंट इन द ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लिस. फिर वहाँ पे वो अथॉरिटी जो थी, उन्होंने उनके उस सोल्जर्स को पूरी जगह पे, सभी जगह पे भेज दिया एंड्रोक्लिस को पकड़ने के लिए. दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुड नॉट फाइंड हिम. वो जो सोल्जर्स थे वो एंड्रोक्लिस को सभी जगह ढूंढने लगे. उन्होंने बहुत कोशिश की पर फिर भी वो उन्हें नहीं मिला.
एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोक्लिस लिव, और फिर सबसे आखिर में वो जाके जंगल में पहुंच गए, वहाँ उस जंगल में पहुंचे जहाँ पे एंड्रोक्लिस रह रहा था. So students, today's is enough. We will meet in our next lecture and we will going to continue the lesson. Students, हम अगले लेक्चर में इस लेसन का अगला पार्ट देखेंगे. So thank you.